وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائهم كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الحمد لله شافع المذنبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد मेहरबानी करे सूरह बनी इसराइल 15 पारा सूरह बनी इसराइल 17 नंबर सूरत 41 नंबर आयत मेहरबानी करे 48 नंबर 48 नंबर आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अम्साल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला फ़क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन वरुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा क़ुल कूनू हिजारतन औ हदीदा औ ख़ल्क़म मिम्मा यकबुरु फ़ी सुदूरिकुम फसयक़ूलून मन युईदुना क़ुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रह
फसयुनग़िरून इलैका रूसहुम वयक़ूलून मताहु क़ुल असा अन यकून क़रीबा यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नून इल्ला लबिस्तुम इल्ला क़लीला वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश्शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वम मुबीना रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अर्सलनाका अलैहिम वकीला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला वज़ुर्रिय्यतिहिम वअज़वाजिहिम कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमरा ई पाक दरबार नूर रहमत भरा दरबार मग़फ़िरत दरबार नाजाते दरबार दिन दुनिया शांति मंगल कल्याण हासिल करार दरबारे আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাম আর কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শুকরিয়া আদা করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন। আমার কোনো ইলম নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, আমল নেই, এই শুধু কামিল মুর্শিদের হুকুমের পালন করার জন্য দু চারটে আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমরা হাজির হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যের উপরে কামাব আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন সুম্মা আমিন। কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর ওয়াস্তে খালিদ দিল থেকে মাফ করে দিবেন বা ইসলাহ করে দিবেন। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 48 में ये इरशाद फरमाता है, उन्जुर कैफ़ा ज़रबू लकल अम्साला फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततिऊन सबीला। उन्जुर देखो, उन्जुर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आप देखिए तो कैफ़ा ज़रबू किस तरह से बयान कर रहे हैं, किस तरह बयान कर रहे हैं, लका आपके लिए अल अम्साल मिसालें, आपके लिए कैसी कैसी मिसालें बयान कर रहे हैं। कौन? वो कुफ़ार व मुशरिकीन क्या क्या बातें कह रहे हैं। मतलब कभी कोई काहिन कहता था, कभी जादूगर कहता था, कभी कोई इसके अलावा और शायर कहता था, कभी कुछ अलग अलग, कभी दीवाना कहता, नौज़ बिल्लाह, कभी पागल कहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग बातों से, उन्हीं बातों को मिसाल इसमें पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मिसाल अलग अलग, माने ये उनके मिस्ल या उनके मिस्ल या उनके मिस्ल। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि आप देखिए, थोड़ा गौर कीजिए कि किस तरह से, कैसे ये लोग, ये कुफ़ार मुशरिकीन आपके लिए मिसालें बयान कर रहे हैं। और मिसालें बयान कर कर के, कह कर के क्या किया, फ़ज़ल्लू और गुमराह हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बात कह कर के, उनकी शान में बेअदबी करके, उनकी शान में तौहीन करके, उनके अदब का ख्याल न करके, बेअदबी करके लोग गुमराह हो गए। ये जिस तरह कुफ़ार व मुशरिकीन हैं, जो आपको कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, क्या मतलब, तहक़ीर किया, आपको हक़ीर समझा, आपकी ज़िल्लत की, आपको तज़लील किया। इसी वजह से ये लफ्ज़
जो है किसी भी ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में वो ईमान ख़त्म हो जाएगा, इंसान के दिल से ईमान दूर हो जाएगा अगर थोड़ी भी बेअदबी, ज़री भी बेअदबी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर किसी ने कर दिया। इसलिए जाने अनजाने किसी भी तरह से बेअदबी से वो हमेशा परहेज़ करता रहे आदमी, कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकाले हैं जैसे कभी कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, ना लिखे, ना बोले, ना बयान करे, ना मिसाल के तौर पे भी ऐसी बातें कहें। ये कुफ़ार मुशरिकीन ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन सीधा कहते हैं ये फ़लाँ मिसाल बयान कर रहे हैं, सीधा ये कह रहे हैं कि आपस में जब बातें करते हैं तो उस वक्त में कहते हैं कि देखो ना ये दीवाना हो गया है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दीवाना हो गए, नौज़ बिल्लाह, पागल हो गए, मजनू हो गए। ये लफ्ज़ मजनू यानी पागल और दीवाना या फिर इस तरह का कोई भी लफ्ज़ किसी भी मिसाल में हैं, जैसे कुछ लोगों ने इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल कर दिए अगर अपनी किताबों में या अपने बयान में, उससे उन्हें तौबा कर लेना चाहिए और वाजिब है उनके ऊपर में, इसलिए कि इसमें ईमान का तकाज़ा है। ईमान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ महब्बत और दिलो जान से महब्बत, अपनी जान से ज़्यादा महब्बत, अपने माँ बाप से ज़्यादा महब्बत, अपने औलाद से, अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा महब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए। जब तक इंसान के दिल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत दुनिया की एक एक चीज़ से ज़्यादा ना हो जाए, उस वक्त एक इंसान का ईमान कामिल नहीं होता। अब यही समझिए कि ये इंसान का जो मोमिन का ईमान है वो कहाँ पे टिका हुआ है। अल्लाह की शान में बेअदबी अगर कोई करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। और अल्लाह को बहुत कुछ लोग बोलते हैं, इधर उधर बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि मेरे नबी की शान में अगर तुम बेअदबी और गुस्ताखी करोगे तो मैं माफ़ नहीं करता हैं। अगर तौबा कर लिया, खुलूस दिल से तौबा कर लिया, अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो माफ़ फरमा दिया। जैसे कि अल्लाह ताला एक आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, इसी आयत में, इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम, चाहे तो अल्लाह ताला तुम पे रहम फरमा दे और चाहे तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब दे दे। कोई उसके मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। उसके बाद और जितने लोगों ने मिसालें बयान करके अलग अलग लफ्ज़ बयान करके कहा, वो सारे के सारे लोग फदल्लू, सब गुमराह हो गए। फला यस्ततीऊन सबीला, और गुमराह तो हुए और गुमराह होकर करके फिर उनका कोई रास्ता भी नहीं मिल पाया, वो रास्ते से बिल्कुल भटक गए, फिर वो लौट भी नहीं सके, लौटे भी नहीं और कोई रास्ता उनको उसके बाद नहीं मिला। मतलब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर किसी ने थोड़ी भी बेअदबी की तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं, कहीं भी उसका कोई गुज़र नहीं है, किसी तरह भी उसके लिए जो है अल्लाह ताला के दरबार में पनाह नहीं है। फ़ला यस्ततीऊन सबीला, और वो लोग गुमराह होने के बाद फिर कोई रास्ता नहीं पा सके, हिदायत का रास्ता नहीं पा सके। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत से दूर कर दिया और गुमराह कर दिया ऐसे लोगों का, और फिर इनका ठिकाना जहन्नम ही हुआ, जहन्नम के सिवा और कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये लोग तो कहते ही हैं ये सारी चीज़ें, ये सब तो बातें कहते हैं आपकी शान में, या रसूल अल्लाह, ए नबी अल्लाह, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन, क्या कहते हैं? और ये कहते हैं कि क्या हम लोग हड्डियाँ हो जाएंगे, हम लोग हड्डी हो जाएंगे, माने मरने के बाद जब हम कब्र में चले जाएंगे तो हमारी सब जो है गोश्त पोस्ट सब निकल जाएगा और वहाँ से फिर हम हड्डी बन जाएंगे हैं। ये कुफ़ार और मुशरिकीन का ये ख्याल है। वो ये कहते हैं वरुफ़ातन, और गल जाएंगे, गले हुए की तरह से हमारा हाल हो जाएगा, हम बिल्कुल, मेरी हड्डियों को भी कोई अगर चूर करना चाहे तो चूर चूर हो जाएगा, क्या हमारा हाल ऐसा हो जाएगा? इन्ना लमबऊसूना खल्क़न जदीदा, और फिर तो क्या हम फिर से पैदा होंगे और फिर हम ज़िंदा किए जाएंगे? ये सवाल कर रहे थे कौन? ये कुफ़ार मुशरिकीन। क्यों? यही है एक ईमान, ईमान का एक तकाज़ा यही है कि मरने के बाद वलबास बादल मौत, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि मरने के बाद फिर हमें दोबारा क़यामत में उठना है, ज़िंदा होना है, अल्लाह के सामने हाज़िर होना है और हिसाब व किताब के लिए हमें तैयार रहना है।
हमें जो हिसाब व किताब के लिए तैयार रहना है उस वक्त के लिए कि हम ज़िंदगी में क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तमाम चीज़ों को इंसान को हमेशा अपनी नज़र के सामने में रखना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो हालत है, इस हालत से हम कहीं बेखबर तो नहीं हो रहे। एक एक पल, एक एक लम्हा का इंसान को खबरगिरी अपनी करते रहना चाहिए। और दिन भर का हिसाब, जब हम सोएं तो सोने के वक्त में अपना हिसाब कर लें। ये तसव्वुफ़ की लाइन में, खानक़ाह की लाइन में और शरीयत में ये भी इंतहाई ज़रूरी है कि अपने दिन भर का हिसाब हर इंसान ले। उसे कहते हैं मुहासबा। हम जहाँ मुजाहदा करते हैं, जहाँ हम मुराक़बा करते हैं, जहाँ हम मुशाहदा करते हैं, जहाँ हम वज़ाइफ़ और औराद का विर्द करते हैं और पढ़ते हैं, उसी जगह अपने नफ्स का हिसाब भी हमें करना है, अपने अमाल का हिसाब भी हमें करना है। हमने आज क्या खोया है और क्या पाया है, हमने क्या अमल किया है और क्या हमने बदअमली की है, हमने कितनी नमाज़ें अदा की हैं, कितनी नमाज़ें हमने छोड़ी हैं और क़ज़ा की हैं, और किस तरह से हमने लोगों को धोखे दिए हैं, किस तरह से कितने लोगों के साथ हमने झूठ बोला है, कितने लोगों को हमने जो है दगाबाजी कर करके उनके पैसे लूटे, उनकी ज़मीनें हड़प कर लीं और उनके साथ हमने बेईमानी कर ली। ये सारी चीज़ें हमें रात के वक्त में बैठ कर सोने की से पहले हमें इसका हिसाब व किताब कर लेना चाहिए। यही क्या है, मुहासबा। रोज़ाना अगर इंसान मुहासबा करता है और मौत को याद करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि इंसान अगर रोज़ाना 20 बार कम से कम अगर अपनी मौत को याद करता है, जब वो मरेगा तो वो शहीदों में शामिल होगा, शहीद का दर्जा लेकर करके मरेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ये सब कुरान करीम हमको ये बताता है। तो ये कुफ़ार मुशरिकीन का ये जो कहना कि क्या हम मर जाएंगे या मरने के बाद हम हड्डी हो जाएंगे, सड़गल जाएंगे और फिर दोबारा हम नई मखलूक बन करके नई ज़िंदगी लेकर के हम फिर पैदा होंगे, इस पर उनका ईमान नहीं था। लेकिन मोमिन जो है उसका इस पर ईमान है। फ़र्क यही है, एक जो कुफ्र करने वाला है, शिर्क करने वाला है, उसका इस पर ईमान नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, अगर हम ज़िंदा भी हुए तो हम दूसरे इसमें हम क्या करेंगे, हम पैदा हो जाएंगे, किसी दूसरी शक्ल में हम पैदा हो जाएंगे, किसी दूसरे रूप में हम पैदा हो जाएंगे। उनके यहाँ ये मामला आता है, क्या इसे कहते हैं मुनासखा। मुनासखा का मतलब यही होता है कि एक रूप में अभी पैदा हुआ, फिर दूसरे जन्म में दूसरा पैदा हुआ, तीसरे जन्म में तीसरा पैदा हुआ। ये जो 7 जन्म का जो चक्कर है ये बिल्कुल ही रॉन्ग, एकदम गलत है। इस तरह से ये अक़ीदा है ही नहीं। इंसान एक बार ज़िंदा पैदा हुआ, उसके बाद मरा, फिर एक मरतबा और ज़िंदा होगा। इंसान की रूह कभी मरती नहीं है। इंसान की रूह जैसे ही निकली इंसान के जिस्म से निकल कर सीधा अल्लाह के हुजूर हाजिर। अगर नेक रूह है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत, और अगर बद रूह है तो उसके लिए जहन्नम। फ़ैसला वहीं हो जाता है। पहली मंजिल वो कब्र की मंजिल है, वहीं पर पहला फ़ैसला हो जाता है। इसलिए इंसान को कम से कम उस काली कोठरी में जो सिर्फ 2 गज़ की ज़मीन है और कोई ऊंचाई नहीं, सिर्फ बैठ ही सकता है इतनी ही ऊंचाई, और वो बिल्कुल न इधर करवट ले सकता न इधर करवट ले सकता है। वो जो मिट्टी का जो ढेर है उसके अंदर में रहना कैसा, किस तरह से होगा, ना वहाँ अपने होंगे ना कोई पराए होंगे, कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और फरिश्ते होंगे। भला वो जो वक्त है उस वक्त के लिए हमें ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर करना चाहिए, हमें खौफ खाना चाहिए, हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें अकेले माँ के पेट में रखा था, फिर वहाँ से निकाल करके ज़िंदा किया, फिर ज़िंदगी अता फरमाई, फिर हमें आज मार कर करके फिर अकेले हमको उस कब्र की कोठरी में डाल दिया, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनका जो ये ख्याल है ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है, नबी आप फरमाइए, इस तरह से कहिए, कुल ऐ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, कूनू हिजारतन व हदीदन, कि तुम लोग पत्थर हो जाओ चाहे तुम लोहा बन जाओ। अल्लाह ताला हो सकता है कि तुम्हें लोहा बना दे, हो सकता है तुम्हें पत्थर में तब्दील कर दे, औ खल्कन, या फिर ऐसी मखलूक में तुम्हें पैदा फरमा दे, ऐसी मखलूक में पैदा फरमा दे कि जो तुम्हारे जहन में बहुत ही दूर वो चीज़ें हों, तुम्हारे सीनों में तुम इस किस्म से कि तुम्हारे सीनों के बीच में वो चीज़ बड़ी हो, बड़ी लगे कि अरे ये इतनी बड़ी चीज़ ये कैसे हो सकती है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसी पैदाइश फरमा दे। फसयक़ूलून मन युईदुना, तो फिर उसके बाद ये लोग
क्या कहते हैं, ये कहते हैं या कहेंगे कि कौन फिर लाएगा हमको, माने कौन हमको दोबारा पैदा करेगा। इसका मतलब कि अल्लाह से भी इनका इनकार हो गया, अल्लाह की ज़ात पर कि जो अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, और उस कादिर मुतलक के ऊपर में इंसान का पूरा ईमान, यकीन, भरोसा, तवक्कुल सब कुछ रहना चाहिए कि जो चाहे आन की आन में वो कर दे फ़ौरन। तो ये कहते हैं कि फसयक़ूलूना मन युईदुना, उस वक्त ये लोग ये कहेंगे कि हमें कौन लौटाएगा। मैं कुल अल्लज़ी फ़तरकुम, या नबी आप ये फरमा दीजिए कि वही लौटाएगा तुम्हें अपनी हालत में, फ़तरकुम जिसने, अल्लज़ी फ़तरकुम जिसने तुम्हें पैदा किया, अव्वल मर्रा पहली बार, जब पहली बार माँ के पेट में जब तुमको रखा और एक नापाक कतरे से तुम्हें एक वजूद पूरा बख्शा, नाक, कान, आँख, हाथ, पैर सब कुछ छोटा छोटा लेकर करके तुम्हारे जिस्म को मुकम्मल इंसान बना दिया, सुनने की ताकत भी दे दी, देखने की ताकत दे दी, बोलने की ताकत दे दी, खाने की ताकत दे दी, सब कुछ हैं। और जिस वक्त जैसा तुम्हारे लिए ज़रूरत हुआ, जैसी ज़रूरत तुम्हारे लिए पड़ी कि कब तुम्हें लिक्विड खाना है, तब कब तुम्हें जो है दाल चावल अनाज खाना है, कब तुम्हें कैसा खाना है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ तुम्हारे लिए मुहैया फरमा दिया। वह इतना बड़ा मोहसिन, इतना बड़ा एहसान अजीम करने वाला, वही तुम्हें क्या करेगा, जो पहली बार जिसने पैदा किया था वही तुम्हें फिर दोबारा ऐसी हालत में लौटाएगा। फसयुनग़िज़ूना इलैका रूऊसहुम। अब उसके बाद ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब ये बात जब उनके सामने में जब आएगी, बस वो झुका देंगे इस पर आपके आगे, वो अपने सरों को वो झुकाएंगे, सरों को झुका के जब कोई बात आदमी के दिल में जब उतरती है तो उस वक्त क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ सही बात है। ऐसे इस तरह से जो हर सर हिलाते हैं उसी को ये कह रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फसयुनग़िज़ूना इलैका रूऊसहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ ये लोग आपके सामने में अपने सरों को हिलाएंगे और झुका देंगे। वयक़ूलूना मताहू, और कहेंगे कि ये कब होगा, मताहू ये सब वाक़या कब होगा। तो ये बोलने का मतलब ये कि यकीन नहीं है या शक नहीं है, बल्कि इस पर यह कि नहीं ये तो है ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, फिर भी उसका क्या है कि इनकार के लिए ये सवाल कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि पूछता है इंसान, उसे इस्तिफ़हाम इनकारी कहते हैं, माने मतलब है इनकार करना, लेकिन सवाल के अंदाज में उस चीज़ को बोलते हैं कि एरकम की हाँ वे मतलब क्या नहीं होगा ऐसा। तो इस चीज़ को जो बोल रहे हैं कि वयक़ूलूना मताहू, क्या ये कब होगा ऐसा, तो उसका जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसा अन यकूना करीबा, कि बहुत ही जल्द ये हो जाएगा, ये होने वाला है तुम्हारे लिए, बहुत जल्द होने वाला है। अब वो अल्लाह के नज़दीक जल्द हम ये समझते हैं कि जल्द बस 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर में सब कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस इंसान के नज़दीक में वही जल्द है जब वो चाहे, जब वो चाहेगा जल्द, माने उसके हुक्म की देर है, जैसे ही वो हुक्म देगा बस फ़ौरन हो जाएगा, उसमें कोई भी और देरी नहीं होगी। यौम यदउकुम फतस्तजीबूना बिहम्दिही। अब उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये सारी बातें तो हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया कि आप इस तरह से कहिए, आप ऐसे कहिए, और ये आपके सामने में सर हिलाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और उसके बाद फिर है यौम यदउकुम, जबकि यौम यदउकुम, जिस दिन वो अल्लाह तबारक व तआला जब बुलाएगा तुम्हें, जब क़यामत के रोज़ वो बुलाएगा तो उस वक्त फतस्तजीबूना बिहम्दिही, तो उस वक्त तुम अल्लाह की हम्दो सना करते हुए तुम जाओगे उसके सामने और जवाब दोगे। और उस वक्त में जब तुम जवाब दोगे तो उस वक्त क्या करोगे, तो उस वक्त तुम कहोगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिही व बिहम्दिका, पाक है अल्लाह की ज़ात और तेरी ही तारीफ़ है। उस वक्त यही कुफ़ार व मुशरिकीन जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करते थे, अल्लाह का नाशुक्री करते थे और रसूल पाक वसल्लम को जो इनकार करते थे, इनकी शान में बेअदबी करते थे, गुस्ताखी करते थे, इनकी तहक़ीर करते थे, इनकी बेइज्जती करते थे, और कभी पागल तो कभी मजनू तो कभी कुछ तो कभी कुछ कहते थे, यही लोग उस रोज़ जब क़यामत के रोज़ और जब उठाए जाएंगे कब्र से तो ये कहते हुए उठेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। और हदीस में ये भी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह
जो लोग पढ़ने वाले हैं, यानी जिनका ये यकीन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद यानी इबादत के लायक नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो ये बात करने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं, तो ऐसे लोग जो होंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोगों पर हालत क्या होगी, उनकी कब्रों में कोई वहशत, कोई घबराहट, कोई फ़िक्र, कोई परेशानी उनकी नहीं होगी। और जो पढ़ने वाला है, साथ में नमाज़ पढ़ने वाला है, साथ में हक़ानी वजीफ़ा भी पढ़ने वाला है, दरबार से जुड़ा भी है, मौलाना जान गाची रहमतुल्लाह अलैह की बातों पे अमल भी करता है, ऐसे लोगों को तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी घबराहट नहीं होगी, उनके लिए तो और भी रहमत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन यही है कि हम नमाज वजीफ़ा पढ़ने के साथ साथ तकवा करें। तकवा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम सूद से सिर्फ बच जाएं और दूसरे लोगों को हम टोपी पहनाते रहें, लोगों के साथ झूठ बोलते रहें, लोगों के साथ दगाबाजी करते रहें और उसकी ज़मीन उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करते रहें, बात बात में जब कहीं फंसने की बात आए तो वहाँ झूठ बोल दें। ये सारी चीज़ों से परहेज़ करना लाजिम है, ये सब तकवे में शामिल है। लोगों से बात करें तो हम अच्छी तरह से बात करें, बेरुख हो करके बात ना करें, ऐंठ करके बात ना करें, गुस्से में बात ना करें। ये बहुत ही एक एक चीज़ जो है हमारे यहाँ पे तकवा है। सदका के बारे में, सदका ये है कि अगर एक मोमिन से मुस्कुरा के अगर बात करता है वो भी एक सदका है। मुस्कुरा के बात कर लिया तो वो भी एक सदका है। अब मुस्कुराना ये नहीं है कि उसकी बेइज्जती करके मुस्कुराए। मुस्कुराना दो तरह से होता है, कभी तो उसका मजाक उड़ाने के लिए हंसता है, मुस्कुराता है, और कभी उसकी ताज़ीम के लिए या दिल को सुकून के लिए। तो इंसान को अच्छी नीयत के साथ ये करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और ये अल्लाह ये हदीस में यह है कि उन्हें कोई वहशत भी नहीं होगी। और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों पर कब्र से उठते ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं देख रहा हूँ कि वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी हदीस में ये लफ्ज़ भी आता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़हबा अन्नल हुज़्न, कि अल्लाह की तारीफ़ है, सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं कि जिसने हम पर से गमों को दूर कर दिया, हम पर से गमों को दूर कर दिया। यानी जब इंसान कब्र से जब उठेगा, मोमिन बंदा, नमाजी बंदा, परहेज़गार बंदा, मुत्तकी बंदा जब कब्र से जब उठेगा अपने सरों से मिट्टी को झाड़ करके, उस वक्त वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़हबा अन्नल हुज़्न, कि अल्लाह की तारीफ़ है, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हम पर से गमों को दूर कर दिया। यानी जो मुसीबत, जो परेशानी, जो तकलीफ़ थी वैसी कब्र के अंदर में थी और उसके बाद अब वहाँ से आज़ाद है। अब जब आज़ाद है तो आज़ाद होकर के अब अल्लाह के सामने जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मोमिन बंदे होंगे, कामिल औलिया अल्लाह होंगे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब व किताब, हज़ारों हज़ार, 70 हज़ार का एक दल, उन 70 हज़ार में फिर एक के साथ हज़ार का दल, इस तरह से लोग माने बेशुमार लोग होंगे कि जो बेहिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। कामिल मुर्शिद फरमाते थे, चौथे पुरशिदा हुज़ूर क़िबला सामन सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह कि जो इस वजीफ़े के जो पढ़ेगा, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेगा, क़ज़ा नहीं करेगा और तक़वा करेगा, परहेज़गारी करेगा और ख़ास करके ये तमाम हराम रोज़ी, हराम काम से बचता रहेगा, सूद से बचता रहेगा और कामिल मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक चलेगा, तक़वा करेगा, यानी और कोई भी उल्टा पल्टा काम नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये जो दरबार है ये जन्नती बनाने का दरबार है, लेकिन शर्त ये है कि जो लोग आएँ, हम लोग जब आए हैं तो यहाँ के हुक्म के मुताबिक अमल करें, चलें। अगर हम आए भी और अमल भी नहीं किए तो इससे बदतर नसीब और नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाए लोग, अब पाने के बाद उन पे इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया मजनू है तो पागल है तो बच्चा है तो ऐसा है तो वैसा है, जादूगर है, सब कह करके गुमराह भी हो गए और गुमराह होकर के जहन्नमी बन गए हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ है तो ऐसी नौबत ना हो, ऐसा ना हो कि हम दरबार में आकर के भी हम नौज़ बिल्ला किसी लायक न बन सकें और जन्नती न बन सकें, गुनाहों की मग़फ़िरत न करा सकें, ऐसा ना हो। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वतज़ुन्नूना इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला,
और उसके बाद तुम ये ख्याल करोगे कि तुम बहुत ही कम इसमें रहे। मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हें बुलाएगा, और जब तुम्हें बुलाएगा और तो उस वक्त तुम ये जवाब दोगे उसके हम्दो सना के साथ में, यानी ये लोग भी उठेंगे तो वैसे ही पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उठेंगे, इसलिए कि अल्लाह तो मरने के बाद ही तो इंसान की ज़बान जो है, लैंग्वेज उसकी अरबी हो जाती है और वो अरबी समझ सकता है, अरबी बोल सकता है। और इसके साथ जब ये इंसान जो मोमिन बंदे हैं जब ये उठेंगे तो अल्लाह की इस तरह से हम्दो सना करेंगे और तारीफ़ करेंगे, और तारीफ़ कहते हुए इनके साथ कोई घबराहट कब्र के अंदर नहीं होगी। लेकिन वो लोग कि जो कुफ़ार और मुशरिकीन है वो कब्र में जाएंगे तो उनके ऊपर में दहशत, खौफ, एक डर, एक भय उनके दिलों में समाया हुआ रहेगा, और रहना भी चाहिए, इसलिए कि वो दुनिया में तो डरे नहीं आखिरत से और कब्र की मंजिल से, तो उनके लिए वहाँ फिर डरना है ये। और यहाँ जो लोग डरे तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल से वहाँ का डर जो है वो निकाल दिया। उसके बाद ये लोग तुम ख्याल करोगे कि इल लबिस्तुम इल्ला कलीला, कि हम तो यहाँ नहीं ठहरे मगर थोड़ी देर। मैंने कब्र की मंजिल, अब कोई समझिए कि 70 बरस से है, कोई समझिए 100 बरस से है, कोई समझिए कि अब जो 1400 साल पहले 1500 साल पहले जो इंतकाल किया और कब्र में है, तो 1500 1500 साल, अगर अभी खुदा न खास्ता अगर अभी क़यामत हो जाए तो उनके लिए 1500 साल, एक अभी दफन हुआ और थोड़ी देर के बाद क़यामत हो गई तो उसके लिए थोड़ी ही देर, उतनी देर। तो ये जो ख्याल, ये जो चीज़ है, चाहे वो 1500 बरस से कब्र के अंदर है, वो भी है जो अभी दफन हुआ, वो भी इन सब के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम यही ख्याल करोगे कि हम तो थोड़ी देर ही कब्र में रहे। जिस तरह इंसान 60, 70, 80, 90, 100 साल, 150 साल तक ज़िंदगी गुजारता है और दुख, मुसीबत, तकलीफ़ में घिरा रहता है, लेकिन अल्लाह का नाम लेता रहता है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता रहता है, ऐसा इंसान जब मरता है तो मरने के बाद अल्लाह की तरफ से जो उसे खुशखबरी और बशारत मिलती है, तो उस वक्त वो इंसान कहता है कि जो सारी तकलीफ़ थी, लगा कि ज़रा थोड़ी सी तकलीफ़, मैंने ज़री देर के लिए, ज़री देर मैंने 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए मुझे तकलीफ़ पहुँची और फिर अब आराम ही आराम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन मुसीबत और तकलीफ़ का जो सामना जो करा देता है, उसके लिए अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, धो देता है। साहबा इकराम जो है कभी कभी ये तमन्ना करते थे मुझे कोई बीमारी हो, बुखार आ जाए, बुखार से अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, लेकिन हम लोग तो घबरा जाते हैं। उनका जो मामला था आमने सामने का था, सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह एकदम डायरेक्ट। उस वक्त जो मामला होता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मतलब अल्लाह से फ़ौरन पूछ लिया और जवाब उधर से जो आया तो वो जवाब आ गया। तो इसलिए वहाँ पर जिस तरह सवाब होता था वैसे ही खौफ भी रहता था, लोगों को डर भी रहता था। ज़री ज़री सी गलती होती थी फ़ौरन जाकर के हाजिर होते, या रसूलल्लाह ऐसा हो गया हमारे साथ, या रसूलल्लाह ऐसा हो गया हमारे साथ। मैंने वो मुदावा थे, वो मुरब्बी थे, वो हर तरह के एहसान करने वाले थे, बाप के दर्जे में वो थे, और तमाम चीज़ों को आप भुला करके रखिए तो वो मौलिम कायनात थे, सारी दुनिया को सिखाने वाले थे, और लेकिन उनका कोई सिखाने वाला दुनिया में न था। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट उन्हें सिखाया, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनको बताया सब कुछ, वही के ज़रिया से, इल्हाम के ज़रिया से, इल्का के ज़रिया से अल्लाह ताला ने एक एक बात को बता दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वकुल्लि इबादी यक़ूलू अल्लती हिय अहसन।